Akhil Priya classes. This is Priyanka Khilesh Dikshit, and today we are going to solve the exercise 8.3 of class 10th, that is the chapter Introduction to Trigonometry. So let's get started. So the first question in this exercise is evaluate, and this question has several parts. So solving the first one, that is sine 18 degree divided by cos 72 degree. We just wanted to find its value. Okay, so first of all, sine 18 degree. Okay, we can write it like sine 90 degree minus 18 degree. Okay, and as it is cos 72 will remain as it is 72 degree. You know that if sorry, here 72 degree has to come, 72 degree. Okay, so now as we know that if we subtract 90 degree minus 72 degree, so we get 18 degree, so it will be equivalent. And by the formula, as we know that the formula is sine 90 degree minus a is equal to cos a. Okay, we have done in our previous video. So this is the formula. So this formula can be applied here. Okay, so from let it be suppose first. So from first we have what? We have sine 90 degree minus a, yani sine 90 degree minus 72 degree can be written as cos 72 degree. Okay, so it can be written like cos 72 degree and the division by cos 72 degree. So the answer will come out to be 1. This is the final answer. So when we evaluate sine 18 degree divided by cos 72 degree, we can write sine 90 degree minus 72 degree, because we know that when we subtract 90 degree minus 72 degree, we get sine 18 degree. Okay, and we also know that sine 90 degree minus a is equal to cos a. So just by putting this identity in first, we have cos 72 degree divided by cos 72 degree, which comes out to be 1. So this is the solution of our first part of the first question. Now the second part of this question is tan 26 degree divided by cot 64 degree. This question is similar to the first one. So how we have to solve it? Exactly like this we have done in our previous part. We will do tan 90 degree minus 64 degree. Okay, as you know that when we subtract 90 degree minus 64 degree, we will get 26 degree. So we can write it like this. Okay, and divided by cot 64 degree. Exactly in the same way we have the equation. Now we will have cot 64 degree divided by cot 64 degree, v equal to 1. This comes out to be 1. Why we written like this? Because we know that tan 90 degree minus a will comes out equal to cot a. Okay, exactly in the same way, because this identity and this formula we have used here. So we have cot 64 degree divided by cot 64 degree, that comes out to be 1. Okay, so this part also done. So I think this will be clear to you. Now proceeding to the third part. So the third part of this exercise of the question number first, we have cos 48 degree minus sin 42 degree. For the subtraction or addition or division, we want कि हमारी जो terms हैं वो सेम हो. ठीक है, अब यहाँ क्या है, cos है, यहाँ है sin. तो हम क्या करेंगे, या तो cos को sin में चेंज करेंगे या फिर sin को cos में चेंज करेंगे, ताकि हम सब्ट्रैक्शन कर सकें. मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देती हूँ. पहले हम चेंज करते हैं cos को. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 48 डिग्री की जगह मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि वो इक्विवेलेंट होगा 48 डिग्री का. तो मैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकती हूँ, और sin 42 डिग्री एग्जैक्टली वैसे ही लिख लेना है जैसे हमारे क्वेश्चन में है. अब cos 90 डिग्री माइनस a, इसको मैं लिख सकती हूँ sin a, यानी कि sin 42 डिग्री. ठीक है, तो sin 42 डिग्री
माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब और करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम साइन को चेंज करेंगे कॉस की टर्म में, ठीक, ये मैंने आपको एक तरीके से बताया है। अब हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जब हम साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में। सो कॉस 48 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए। साइन को चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, बिकॉज जब हम 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री करेंगे तो हमें 42 डिग्री मिलेगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस ए। तो कॉस ए हमारे पास क्या है 48 डिग्री, तो इसको लिख देंगे कॉस 48 डिग्री। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी हैव 0। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से, यानी कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि चेंज करना है टर्म को सेम टर्म में, ताकि जो हम इनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो कॉस को हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, एक तरीके, दो तरीके सीखे इस क्वेश्चन को करने को। जो पीछे किया हमने उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉस को जो है हमने साइन में चेंज कर दिया, पूरी टर्म साइन में हो गई, सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास आंसर 0 आ गया। और इसी तरह हमारे पास क्या है, हमने दूसरे तरीके में ये किया कि साइन को हमने चेंज किया है कॉस में, और फिर दोनों कॉस में मिलने के बाद हमें जो आंसर 0 मिल गया। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। अभी जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया कि हमने थर्ड पार्ट में किया था कॉस को साइन में चेंज कर दिया या साइन को कॉस में चेंज कर दिया, पूरी टर्म को क्या है लाइक टर्म्स में चेंज करना है साइन या कॉस की वैल्यूज में। इसी तरह हम यहाँ पर कोसिकेंट को सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, या तो सेकेंट को कोसिकेंट वाले पार्ट में चेंज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहले करते हैं कोसिकेंट को मैं चेंज करती हूँ। ठीक है, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, अगर मैं ये 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री करूंगी तो मेरे पास 31 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यहां से मैं एज इट इज सीकेंट 59 डिग्री लिख सकती हूँ। ओके, हमें पता है कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो इक्वलेंट होता है सीकेंट ए के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीकेंट ए यहाँ पर क्या है 59 डिग्री, तो 59 डिग्री ये पार्ट ऐसी एग्जैक्ट एज इट इज आ जाएगा 59 डिग्री। तो सीकेंट 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री विल कम्स आउट टू बी 0। एग्जैक्टली जैसे हमने पीछे किया था, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर मैं सीकेंट को चेंज करना चाहूं, चलिए मैं करके दिखा देती हूँ और पार्ट देख लेते हैं इसका। अगर मैं यहाँ पर कोसिकेंट वाले को एज इट इज रहने देती हूँ 31 डिग्री माइनस सीकेंट, अब हम सीकेंट को चेंज कर लेंगे कोसिकेंट की टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, जब मैं 90 में से 31 डिग्री माइनस करूंगी तो 59 डिग्री आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस, अब क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सीकेंट कोसिकेंट ए, तो यहाँ पर मैंने लिखना है कोसिकेंट और मेरा ए की वैल्यू क्या है 31 डिग्री। सो यहां से हम निकाल सकते हैं कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस कोसिकेंट 31 डिग्री कम्स आउट टू बी 0। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है टर्म्स को लाइक टर्म्स में चेंज करना है और फिर जो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने देखा हमने दोनों तरीके से आंसर निकाला, दोनों तरीके से आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें शो करना है कि tan 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। वी हैव टू शो इट। सो लेट स्टार्ट, LH साइड से हम स्टार्ट करते हैं। सो tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 23 डिग्री, इस tan 42 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। जब मैं 90 में से 48 डिग्री माइनस करूंगी तो 42 डिग्री आएगा। ठीक है, ये tan 67 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, tan 67 को मैं लिख सकती हूँ tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। जब मैं 90 में से 23 डिग्री जो है माइनस करूंगी तो मेरे पास 67 डिग्री आएगा। सो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि tan 90 डिग्री माइनस ए, सो वी हैव कॉट ए। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ
tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot A। अब A क्या आ जाएगा 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, क्योंकि cot A है। ठीक, यहां पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, tan 90 डिग्री माइनस A विल बी इक्वल टू cot A। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर पुटिंग की है। ठीक, tan 90 माइनस A, यहां पर A मेरा था 48 डिग्री, तो मैंने cot 48 डिग्री कर दिया। यहाँ tan 90 माइनस 23 डिग्री, A मेरा है 23 डिग्री, तो मैंने यहाँ लिख दिया cot 23 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, या मैं इसको लिख सकती हूँ कि 1/tan 48 डिग्री। आपको पता है कि जो हमारा cot होता है वो रेसिप्रोकेट होता है tan का, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ एग्जैक्टली 1 इंटू कॉट 23 डिग्री, सॉरी यहाँ tan आएगा, tan 23 डिग्री। अब मैं इसको क्या करेंगी, ये सारी जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1। 1 इंटू 1 दैट इज 1, वो इक्वल है हमारे RHS को, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमें शो करना था। सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। सो हमने क्वेश्चन को शो कर दिया। आई थिंक कि ये आपको इसे अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मेरे पास क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चलते हैं, प्रोसीड करते हैं हमारी LHS साइड से। तो cos 38 डिग्री और इस cos 52 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि जब मैं 90 से 38 को माइनस करूंगी तो 52 डिग्री मिल जाएगा। तो मैं cos 52 डिग्री को इस तरह लिख सकती हूँ। एग्जैक्टली आगे प्रोसीड करते हुए sin 38 डिग्री मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे। तो sin 52 डिग्री को आप अगेन कैसे लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही जो हमारे पास फॉर्मूला था, अब मैं इसको तो ऐसे ही उतार लूंगी, ये जो हमारा टर्म है ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ये जो है हमारा टर्म cos 90 माइनस A हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, sin A। तो A की वैल्यू मेरे पास है 38 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख दूंगी sin 38 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ से sin 38 डिग्री को एज इट इज नोट कर लूंगी। अब यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस A, तो ये कैसे, ये किस में चेंज हो जाएगा, cos A में। ठीक है, तो cos A हमारे पास क्या है 38 डिग्री। अब यहां से हम देखेंगे तो ये जो टर्म थी हमारी, ये दोनों आपस में सेम हो गई, ये एक पॉजिटिव में हो गई, एक नेगेटिव में हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये cos 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, ये पॉजिटिव टर्म हो गई, ये हमारी नेगेटिव टर्म हो गई साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। तो ये जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0। तो हमें जो क्वेश्चन में शो करना था, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 जो है RHS है, तो यहां से हमने जो क्वेश्चन को शो कर दिया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a. We have to find the value of a and we have given with this equation, so let's get started with it. So tan 2a equal to cot a minus 18 degree, so which can be written as tan 2a. So look at this, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि मैं tan 2a को कैसे लिख सकती हूँ। So tan 2a को cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan a, इस तरह लिख सकते हैं ना, हम अभी तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये जो है tan 2a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो a की वैल्यू है वो क्या है 2a, तो मैं यहाँ पर tan की जगह क्या पुट कर देती हूँ, cot
90 डिग्री माइनस 2a, बिकॉज ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो मैंने यहां पर क्या कर दिया, tan 2a की जगह मैंने लिख दिया cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि मेरे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी है 2a, और ये जो है ऐसे ही मैं लिख देती हूँ cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां से क्या होगा, ये दोनों cot कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को एक तरफ लेके जाते हैं, a वाली टर्म से एक तरफ और 90 और वो उधर। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ये मैं यहाँ ले जाती हूँ 18 हो गया, ठीक। अब ये a प्लस ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2a। यहां से जब मैं इसको प्लस करूंगी ये क्या बनेगा 108 डिग्री, ये हो गया 3a, ठीक है। यहां से जो है a की वैल्यू निकालते हैं, a अब यहां क्या हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन 3, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 108, ये 3 यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या है मेरे पास निकल आएगा 36 डिग्री। तो a की वैल्यू जो है वो क्या आई 36 डिग्री। ओके, सो व्हाट वी हैव टू आंसर इन द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a, सो इट कम्स आउट टू बी 36 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। सो देखिए हमारे a की वैल्यू भी क्या आई है 36 डिग्री। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियरिफाइड टू यू। यहाँ पर देखिए tan 2a को मैंने क्या किया है cot की टर्म्स में लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan a। मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने a की जगह क्या है पुट किया है 2a को, बाकी एग्जैक्टली मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, दोनों तरफ से cot को कैंसिल किया, दोनों तरफ वैल्यूज को जो है एक्सचेंज करके a की वैल्यू को निकाला, हमारे पास 36 डिग्री आ गया। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b, so we have to prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। tan a इज इक्वल टू cot b हमें दे रखा है क्वेश्चन में, सो मैं cot b को कैसे लिख सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ tan लिख सकती हूँ, यहाँ हम tan a लिख लेते हैं, और यहाँ cot b को मैं लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ tan 90 डिग्री माइनस b। जो अब तक हम पढ़ते आए हैं इक्वेशन कि tan 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cot a, तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है b, ठीक है। तो मैं cot b को इस तरह लिख सकती हूँ, ये आपको फॉर्मूला पता है, और अभी तक हम इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उनमें ये फॉर्मूलाज जो हैं tan, cot, cos, sin इनकी टर्म्स में यूज होते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं cot b को इस तरह लिख सकती हूँ tan 90 डिग्री माइनस b। अब यहां से दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, ये आ गया a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, मैं इसको इधर ले जाऊंगी a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देखिए जो मुझे क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ हो गया। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है secant 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट 8 माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ये 4a जो है ये एक्यूट एंगल है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। सो स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है secant 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। मैं इस secant 4a को ऐसे लिख सकती हूँ कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा था कि कोसिकेंट 90 माइनस a इज इक्वल टू सीकेंट a, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4a, तो मैं सीकेंट 4a को इस तरह रिप्रेजेंट करूंगी। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, एज इट इज मैंने कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री की जो वैल्यू है उसको ऐसे लिखना है, यहां से दोनों तरफ से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब मैं इन टर्म्स को एक तरफ ले जाती हूँ, 20 इधर आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री सॉरी प्लस 20 डिग्री, यहाँ हो जाएगा a प्लस 4a, ये यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 110 इज इक्वल टू 5a। तो a की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी मेरे पास 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकल के आएगी 22 डिग्री। तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 22 डिग्री निकल के आई है, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट क्या किया है, सीकेंट को कोसिकेंट की टर्म्स में चेंज कर दिया, जिसको हमें पता है कि कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू सीकेंट a की वैल्यू 4a है, हमने जस्ट उसको पुट किया है क्वेश्चन में, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको एज इट इज लिख दिया, दोनों तरफ से कोसिकेंट को कैंसिल किया,
और इक्वेशंस को एक तरफ करके एक्सचेंज करके हमने ए की वैल्यू जो कि एंगल हमें पूछा गया था वो हमने निकाल दिया 22 डिग्री। ओके, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए बी सी जो है किस इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, जिसको हमें दिखाना है, शो करना है हमें, शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ठीक है, तो हमारे एबीसी जो है इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल के। सो इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम आप लोगों को पता है क्योंकि आप बहुत होशियार हो, तो आप लोगों को पता है कि इंटीरियर एंगल का सम जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री होता है। यहां से मैं क्या करूंगी, बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो बी प्लस सी जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो सपोज कर लीजिए बी प्लस सी अपॉन 2 जो है वो इक्वल है 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल लूंगी, 90 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 2 क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब इस टर्म का मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ क्योंकि साइन बी प्लस सी बाय 2 जो है वो 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 के बराबर है। तो मैं साइन बी प्लस सी बाय 2 को 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 ऐसे लिख सकती हूँ। इसको अब हम लिख देते हैं cos a बाय 2। ठीक, इससे मैं इसको लिख सकती हूँ, ये जो है मेरे पास साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, इसको हम इक्वल टू cos a बाय 2 लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos a के। पर यहाँ पर जो मेरी cos a की वैल्यू है वो कितनी है, a बाय 2, इसलिए मैं साइन 90 डिग्री ए माइनस सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 को मैं इक्वल टू कॉस ए बाय 2 की टर्म्स में लिख रही हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हो गया। दोबारा समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर एंगल्स ए बी सी है, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो मैं बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो निकाल सकती हूँ। तो 180 डिग्री माइनस ए आ जाएगा। ठीक, तो यहां मुझे क्वेश्चन में गिवन है साइन बी प्लस सी बाय 2, तो मुझे क्या करना है, इस बी प्लस सी की जगह में 180 डिग्री माइनस ए का यूज करूंगी। ठीक है, तो मैंने जस्ट यही किया कि बी प्लस सी बाय 2 का मैंने उसकी जगह मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो यहाँ आपको पता है कि 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, और ये अलग हो गया, ये हो गया माइनस ए बाय 2। अब ये जो है 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, ये किसकी वैल्यू निकली है, बी प्लस सी बाय 2। तो मैं यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन था साइन बी प्लस सी बाय 2, उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस साइन इस बी प्लस सी बाय 2 की जगह मैंने 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 को पुट किया। अब क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉज ए, अब यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू है ए बाय 2, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, कॉस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस ए बाय 2। वही हमें क्वेश्चन में शो करना था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। अब हमारे इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। 0 और 45 डिग्री के बीच में जो हमें ये टर्म दी है 67 डिग्री और cos 75 डिग्री, इसको हमें शो करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक, प्लस इसको मैं साइन में लिख देती हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो यहां से क्या है, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, cos 23 डिग्री, और यहां पर हमें मिल जाएगा साइन 15 डिग्री। ये हमारे पास जो है आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो हमें यही बोला था क्वेश्चन में कि जो हमें डिग्रीज हैं उनको क्या है, एंगल्स को 0 से 45 डिग्री के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है। सो वी जस्ट रिप्रेजेंटेड दी टर्म्स in 23 degree and 15 degree which is in between the angle 0 degree and 45 degree.
सो यहाँ पर जो है मेरी वीडियो का जो सोल्यूशन है हमारी 8.3 एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी बेनिफिशियल हुई है, यूजफुल है ये अगर वीडियो आपके लिए, या आपको वीडियो पसंद आई है, तो हिट करिए लाइक बटन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जहाँ कहीं भी हैं आप, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड बी पॉजिटिव एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच। जो है इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो एंगल्स हमें 67 और 75 दिए हैं, इन्हें हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में हो। सो वी हैव इन क्वेश्चन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। सो मैं इसको जो है कन्वर्ट कर सकती हूँ, साइन 67 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अगर मैं इसको 90 डिग्री माइनस 23 करूं तो मेरे पास 67 डिग्री आएगा। इसी तरह एग्जैक्टली कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करूं तो मेरे पास जो है कॉस 75 डिग्री आएगा। लेकिन हमें पता है कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए होता है, तो ए क्या है मेरे पास 23 डिग्री। इसी तरह मुझे पता है कॉस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए के बराबर होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन 15 डिग्री। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है और जो ये डिग्री आई हमारे पास, ये 0 से 45 डिग्री के बीच है, जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेस करने को कहा गया था कि ये जो हमारी टर्म है इसको हमें 0 से 45 के डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना है। यहीं पे जो है मेरी इस एक्सरसाइज 8.3 के जो सोल्यूशंस हैं, इसकी वीडियो जो है खत्म होती है। एंड आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी एंड कीप हार्ड वर्किंग।